Okay, we are ready. I greet you in the precious name of Jesus from Hershey, Pennsylvania, United States of America. मैं आप सबको यीशु मसीह के बाबरकत नाम में पेंसिल्वेनिया से जो है वो सलाम अर्ज करता हूँ। And we are finalizing our teaching on 1 Corinthians. आज हम पहले ग्रंथ It is a blessing to be able to oversee the whole first book of 1 Corinthians. ये वाली बहुत ही बाबरकत कह रहा है कि हमने पहले ग्रंथियों के जो सारा जो खत है उसका मुताबिक किया, उसका जायजा दिया। And so Paul is going to be showing to us here in 1 Corinthians 15 concerning the resurrection of the dead. और हम देखते हैं कि पहले ग्रंथियों उसके 15 के ताल्लुक से जो है वो बात करता है। He starts out in verse 1 of 1 Corinthians 15. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also you have received, and wherein you stand. हम देखते हैं कि 15 बात का आगाज जो है वो उस से होता है। अब ऐसा अधिकार देखते हैं पहला ग्रंथियों उसका 15वां बात और उसकी पहली आयत से। ए भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जारी देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया और जिस पर कायम भी। And chapter 15, verses 1 through 11, he explains that the gospel is the good news. और इस 15 बात की पहली आयत से 11वीं आयत तक वो ये बात याद करता है कि अंजील जो है वो खुशखबरी है। And he is sharing with us that there is only one gospel, but it's described in a lot of different ways. और वो साथ साथ ये भी बयान करता है कि अंजील एक ही है, लेकिन उसको बताने का या उसको बयान करने के मुख्तलिफ अंदाज है। There is the gospel of the kingdom of God, there is the gospel of the grace of God, and there is the gospel of God. और वो बयान करता है कि kingdom of God, grace of God, and of God. You're stuck there, huh? I think turn off your camera, Imran, and only use audio. Okay. Thank you. So we see that the gospel means the good news, and there is different ways that the gospel is the good news. और हमने देखा है कि अंजील का मतलब है खुशखबरी और उसको बयान करने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। There is the gospel of the kingdom of God and the gospel of the grace of God. हमने देखा है खुदा की बादशाही की जो खुशखबरी है और उसके साथ साथ जो है खुदा के फजल की खुशखबरी। There's the gospel of God, the gospel of Christ, and the glorious gospel. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह की खुशखबरी उसकी अंजील है, खुदा की खुशखबरी, और उसके साथ साथ जो हम देखते हैं कि खुशखबरी की अंजील है, which is the everlasting gospel that we have the privilege of being able to share with the world. और हम देखते हैं कि ये अबदी खुशखबरी है और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हम पर फजल किया कि हम इस खुशखबरी को बयान कर सकें।
And so in verses 1 through 11 here, Paul is endeavoring to help us to understand that Christ died for our sins according to the scriptures. और इस पे वो बयान करता है कि किताब मुकद्दस के मुताबिक मसीह हमारे गुनाहों के वास्ते हुआ। He shares with us that Christ died for our sins according to the scriptures, and Christ was buried and rose again according to the scriptures. और उसके साथ साथ ये भी बयान करता है कि मसीह खुदावन जो है किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के वास्ते हुआ, फिर दफन हुआ और किताब मुकद्दस के मुताबिक ये वो जी उठा। He's dealing with the fact that the gospel, which proves the resurrection of the believer, is fivefold here. और यहाँ पे भी वो ये बात बयान करते हैं कि ईमानदारों के ताल्लुक से भी कि वहाँ ईमानदार भी जो है वो क्या होंगे, जी उठेंगे। Verses 3 through 11, it's according to the scriptures that he died and he was buried and he rose again. और हम देखते हैं 3 से 11 आयतें और ये बयान करता है कि किताब मुकद्दस के मुताबिक मसीह खुदावंद मरा, दफन हुआ और जिंदा हुआ। And he shows us in verses 5 through 7 that there were eyewitnesses of the resurrection of Jesus. और 5वीं से 7वीं आयत तक ये बयान करता है कि हाँ, ऐनी शाहिद भी हैं जिन्होंने मसीह खुदावंद को जी उठने के बाद देखा। He tells us in this section there that Peter saw him, the 12 apostles saw him, and the 500 saw him when he ascended up into heaven. और हम देखते हैं कि उसे पतरस और उसके साथ जो 12 रसूल थे और उन लोगों ने उसको जी उठने के बाद देखा। And then he says that James saw him and the apostles saw him again. और फिर उसने कहा कि याकूब ने उसे देखा और फिर इस तरह से और लोगों ने। And so Paul here is endeavoring to help us to understand more clearly the importance of the resurrection and where would we be if Christ did not resurrect from the dead. और हम इस सवाल को जो है वो देख रहे हैं कि मसीह खुदावंद मुर्दों में से जी उठे। And so we see here that he tells us in verse number 10 of chapter 15, but by the grace of God, I am what I am, and his grace, which was bestowed upon me, was not in vain. और 10वीं आयत में वो कहता है कि मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जो कुछ भी मैं हूँ और ये सब कुछ जो कुछ भी मैं हूँ वो खुदा के फजल से। And he goes on to say here that, but I labored more abundantly than they all, and yet not I, but the grace of God which was with me. और ये वो कहते हैं ये सब कुछ जो कुछ भी है खुदावंद के फजल की बदौलत है कि जो कुछ भी मैं कर सका हूँ ये खुदा के फजल की बदौलत है। And Paul here is one that describes God's grace, God's power and ability that is with us as we preach the gospel. और पौलुस यहाँ पे इस बात को बताना चाहता है कि ये खुदा का फजल है कि जब हम उसके अंजील की मुनादी करते हैं तो ये खुदा का फजल है जो हमारी मदद करता है। And then in chapter 15, 12 through 19, he states here that if Christ be not risen, then we are all men most miserable. और इसी तरह से 12वीं आयत से 15वीं आयत तक बयान करता है कि अगर मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा तो फिर हमारा ये अंजील सुनाना बेफायदा रहा। He tells us then our preaching is empty and our faith is empty. और फिर उसने कहा कि हमारा अंजील सुनाना बेसूद रहा और हमारा ईमान मुर्दा है। And he tells us here in verse 15 that we are preaching a false gospel if Christ is not risen. और फिर उसने कहा कि इसका मतलब है कि जो अंजील हम सुनाते हैं कि और वो अंजील फिर इसी काम के नहीं कि अगर मसीह जो है वो मुर्दों में से नहीं जी उठा।
And so he goes on in verse 16 that if the dead raise not, then is not Christ risen. And if Christ be not risen, your faith is vain, and you are yet in your sins. और फिर 16वीं आयत में कहता है, और अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर हम मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा। And so we continue to see how that in verse number 20, he is saying, but now is Christ risen from the dead and became the first fruits of them who slept. आमीन। और 20वीं आयत में वो ये बयान करता है, लेकिन फियल वाकया मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। And so we discover something here that is very interesting. He tells us that in verse 22, for as in Adam all died, even so in Christ shall all be made alive. आमीन। और 22वीं आयत में खुदा का कलाम ये कहता है, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। And so what we discover here is that Paul is challenging us that in Christ we shall all be made alive, and then we are partakers of his life, just like in the natural we are partakers of Adam's life. और यहाँ पे वो पौलुस ये बात बयान करता है जिस तरह से कि आदम में सब लोग जो है वो हैं, तो उसी तरह से हम भी उस जिंदगी के वारिस होंगे जो मसीह में हमें मिलती है, और हम मुर्दों में से जिंदा होंगे। And so, since we are a partaker of Christ's life, then the nature of Christ is sinless and a divine nature. और चूंकि हम मसीह में शामिल होकर हमें अपनी जिंदगी मिलती है और उसमें कोई गुनाह नहीं है, इसलिए हमें भी ऐसी ही जिंदगी गुजारनी है जो गुनाह से मुबर्रा हो, बगैर गुनाह के। Hallelujah. When we have Christ in our hearts, we have the divine nature of God Almighty living in us. याद रखें कि खुदा का शुक्र अदा करते, जब मसीह हमारी जिंदगी में है तो हमारे अंदर भी वो इलाही फितरत है जो कि मसीह खुदावन में है, और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इसके लिए। And so he tells us here also that the nature of Christ is a resurrected nature. और यहाँ भी हमें बताता है कि मसीह की जो फितरत यहाँ पे है वो मुर्दों में से जी उठने वाली जो वो फितरत हमें नजर आती है। And so that same power, he goes on to tell us in Ephesians here, that same power that raised up Christ from the dead dwells in our mortal body today. आमीन। और वो खुदा का खादम ये भी बात बयान करता है कि वही रूह, वही कुदरत जिसने मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, इफ्सियों में इसका जिक्र करता है, वही कुदरत हमारे फानी बदलों में जो है वो सकूनत करती है। And in verse 25, he tells us here, he must reign till he has put all enemies under his feet. और 25 आयत में कहता है, क्योंकि जब तक वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना ले आए उसको बादशाही करना जरूर है। आमीन। So here Paul is instructing us that Christ's dominion is destined to subdue all hostility and everything that is contradiction to God. और यहाँ पे पौलुस रसूल इस बात को बयान करना चाह रहा है कि जब तक उसके सब दुश्मन जो हैं उसके पांव तले नहीं हो जाते, मसीह को वो कुदरत जो है वो उस पर हुकूमत करना जो है वो जरूरी है, और जितनी सब बातें खुदा की बादशाहत के खिलाफ आती हैं उन पर उसे काबू पाना। And he is telling us, and what he means by this is that the lowest part of the human body will equally share in his victory. His feet, under his feet. और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बयान कर रहे हैं कि हाँ, कि उसके पांव तले यानी सब कुछ आ जाएगा और उसको बादशाही करना जो है वो जरूर है। Since we are also the body of Christ, then
Every power and dominion of Satan is under our feet. आमीन। चूंकि हम भी मसीह का बदन है, इसलिए शैतान की सारी जो ताकत है वो भी मसीह के वसीला से, चूंकि हम उसका बदन है, हमारे पांव तले होगी। In Psalms 110 and 1, it says, "The Lord said unto my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstool." और हम देखते हैं ज़बूर की किताब में खुदा का बंदा ये कहता है कि खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, और जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना बना। And also in Psalms 82 and 6, the Bible tells us Jesus is Lord of Lords, and in his victory, mankind is restored to lordship, because और he tells us. Go ahead. Say that again. Psalm 82. Psalms 82 verse 6. I say here. ज़बूर 82 और उसकी जो है 6ठी आयत में लिखा है। Okay, I say you are gods, all of you are sons of the Most High. और उसके तरीके तू खुदावंद है और तू हक ताला का बेटा है। And so you see here, it's talking about a little God, but we are all sons of the Most High. यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि जैसे वो खुदा छोटे खुदा से मुखातिब, लेकिन हम सब खुदा के बेटे और बेटियां हैं। And I am so thankful that God is showing to us here in this 1 Corinthians 15 that he has given us authority and power over the enemy. और यहाँ पे हम 15 बाब में देख रहे हैं कि किस तरह से खुदा सब दुश्मनों को उसके पांव तले जो वो कर देगा। And so he goes on in verse 27 and he states it again, for he hath put all things under his feet. Verse 27. Okay, 27. Yeah. 27वीं आयत में ये कहता है क्योंकि खुदा ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है, और जब वो फरमाता है कि सब कुछ उससे ताबे कर दिया, तो जाहिर है उस जिसने सब कुछ उसके ताबे कर दिया वो अलग रहा। And in verse 28 of the 15th chapter of 1 Corinthians, and when all things shall be subdued unto him, and then shall the Son also himself be subject unto him, and put all things under his feet, that God may be all in all. और 28वीं आयत लिखा है, और जब सब कुछ उसके ताबे हो जाएगा तो बेटा खुद उसके ताबे हो जाएगा, जिससे सब चीजों को उसके ताबे कर दी, ताकि सब ही में खुदा ही सब कुछ हो। So what Paul is endeavoring for us to understand, that Christ must subject all things under him, and his rule all things except God the Father. और यहाँ पे पौलुस हमें किस बात को समझाना चाह रहा है, वो ये चाहता है कि सब चीजें मसीह खुदावंद के इख्तियार में आ जाएंगी बासिवाए खुदा बाप के। So under Christ, all men, all angels, all beings, and all nature. और हम देखते हैं कि मसीह के इख्तियार में सारे फरिश्ते, सारे इंसान, सब मखलूकात उसके इख्तियार में हैं। All the earth, all the heavens, and all the universe is under the lordship of Jesus Christ. आमीन। हम देखते हैं कि सारी जमीन, सारा आसमान और सारी कायनात यीशु मसीह के इख्तियार में है। And in chapter 15, 29, 31 on down here, the hope of our future life, he explains to us. और 29वीं, 30वीं और 31वीं आयत में हम देखते हैं कि मुस्तकबिल के ताल्लुक में के बारे में बताया गया है। And he says in verse 31, which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily. और 31वीं आयत में लिखा है, ऐ भाइयों, मुझे उस आज की कसम जो हमारे खुदा यीशु मसीह में तुम पर है,
मैं हर रोज मरता हूं। And so that is one area that I believe we as believers must teach our people, leaders must teach our people that we have a responsibility to die daily. और मैं ये समझता हूँ बतौर ईमानदार हमें अपनी कलीसियाओं में लोगों को ये इस आयत के बारे में जरूर बताना चाहिए कि हाँ हम मसीह में हर रोज मरते हैं। And then he goes on to tell us here that in verse 33, be not deceived, evil communication corrupt good manners. Verse 32 33. ओके। और 33वें आयत में वो यूं कहता है, बुरी सोचतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। And that word deceive means be led astray or led into error or in false teaching. तो इसलिए वो कहता है कि हमें बुरी बातों से बुरी चीजों से इज्तनाब करना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। He is telling us and challenging us here that we need to guard those people we hang around with. और यहाँ पे बड़े वाज़ेह तौर पे पालूस रसूल ये बात बयान करता है कि हमें उन तमाम झूठे नबियों से, उन बातों से दूर रहना है जो हमें खुदावंद से दूर कर देते हैं। And so he is saying to us that the people we hang around with will influence us, good or bad. और यहाँ पे हमें बताना चाह रहा है कि लोग अच्छे हैं या बुरे हैं, वो ज़रूर हमारी ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं। And we desperately need to understand this principle here. And so he ends this chapter 14 in challenging us to understand what really happens when we are resurrected with Christ. और यहाँ पे वो हमें एक चैलेंज हमें देता है और इस बात का इख्तिताम इसी बात पे करता है कि जब हम मसीह में जी उठते हैं तो फिर हमें कैसी जिंदगी गुजारने की जरूरत है। In verses 35 through 49, he shows to us the picture of resurrection. और हम 35वें आयत से 49वीं तक वो हमें मुर्दों में से जी उठने की एक तस्वीर हमें दिखाता है। In verse 38, he tells us here, but God gives it a body as it pleases him, and to every seed his own body. और यहाँ पे 38वीं आयत में देखें, मगर खुदा ने जैसा इरादा किया वैसा ही उसको जिस्म देता है और हर एक बीज का उसको खास जिस्म। He talks to us and tells us that there is a body of animals, there is a body of fishes, and the birds. हाँ, वो यहाँ पे हमें कहता है कि किस तरह से जैसे मछलियां हैं उनको एक जिस्म है, इसी तरह से और जो हयातियात हैं उनको खुदा ने जिस्म बख्शा है। There is earthly bodies and there is heavenly bodies. और यहाँ वो बयान करता है जिस्मानी जिस्म है और इसी तरह से आसमानी जिस्म भी है। I love what he says in verse number 41. There is one glory of the sun, another glory of the moon, another glory of the stars. For one star differs from another star in glory. मुझे 41वीं आयत बड़ी पसंद है और वहां पे लिखा है, आफताब का जलाल और है, महताब का जलाल और, सितारों का जलाल और क्योंकि सितारे सितारे के जलाल में फर्क है। And then in verse number 42 he says, so also is the resurrection of the dead. It is sown in corruption but raised in incorruption. आमीन। और 42वें आयत में ये कहता है, मुर्दों की क़यामत की ऐसी है, जिस्म फना की हालत में बोया जाता है और बका की हालत में जी उठता है, बेहुर्मती की हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है। It's sown in dishonor but raised in glory. कमजोरी की हालत में बोया जाता है और कुव्वत की हालत में जी उठता है। It's sown in weakness but raised in power. कमजोरी की हालत में बोया जाता है और कुव्वत की हालत में जी उठता है।
And then he helps us to understand there is a natural body, there is a spiritual body. और फिर वो हमें इस बात को समझाने की कोशिश करता है कि नफसानी जिस्म भी है और रूहानी जिस्म भी है. And then he goes and talks to us here about Adam being a living soul. But then he was made also, the last Adam, which is Jesus, was made a quickening spirit. और फिर हम अगर अगली आयत में देखें तो नीचे लिखा है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदमी जिंदगी बख्शने वाली रूह बना, लेकिन रूहानी पहला ना था बल्कि नफसानी था, इसके बाद And रूहानी हुआ. in verse 46, 46, he tells us here that the natural body was first, and now the spiritual body, and we need to understand in verse 47 that it's very important for us to understand natural and spiritual bodies. और 47 आयत में और हमें इस बात को समझने की जरूरत है, जैसे यहाँ पे लिखा है पहला आदमी जमीन से यानी खुदा खाकी था और दूसरा आदमी आसमानी है, जैसा वो खाकी था वैसे ही और भी खाकी है. And in verse number 49, he says, we have bore the image of the earthly, we shall also bear the image of the heavenly. आमीन. और 49वीं आयत में कहता है जिस तरह हम उस खाकी की सूरत पर हुए उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे. And I have a firm conviction here that you and I are heaven's spacemen. Heaven spacemen. You and I are heaven's spacemen and women. You and I. 50वीं आयत लिखा है ए भाइयों मेरा. Yes. Verse 50. What I mean by that is we are God's heavenly men and women here on earth. आमीन. 50 में लिखा है भाइयों मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते, ना फना बका की वारिस हो सकती है. देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे. And when you and I can have that understanding as leaders whose we are, then we will be able to share with the people we minister to the same way. Please repeat that. When we as leaders understand who we are, then we will be able to share with the people who they are, heaven's space men and women. Heavenly men and women. Amen. 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 मेरे अजीजों जब हम बतौर खादमीन बतौर लीडर इस बात को समझ जाते हैं कि हम कौन हैं, तो हाँ हम अपनी कलीसिया के लोगों को भी ये बात समझा सकते हैं कि वो कौन है, कि हाँ वो भी आसमानी शहरी बन सकते हैं. I just love that picture here today that we are heavenly men and heavenly women. और यहाँ पे जो तस्वीर दिखाई गई है और मुझे ये बहुत बात पसंद है जब खुदा का बंदा पालूस ये कहता है कि हाँ हम आसमानी शहरी होंगे, मर्द और जन वहां पे होंगे. And so in verse 51 here, Paul goes on to try to help us to understand that he is showing to us a mystery. और यहाँ पे 51 आयत में हम देखते हैं कि वो एक भेद की बात हमसे करता है. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Hallelujah. Hallelujah. और वो कहता है हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे. I love 52. Change what? In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump. और 52 आयत में कहते हैं और ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे.
The dead in Christ shall rise, incorruptible, and we shall be changed. और यहाँ पे वो कहता है कि जो मसीह में सो गए हैं वो गैर फानी हालत में उठेंगे और हम I सब don't, बदल जाएंगे। I don't know about you, but I tell you what, I am having a supernatural empowerment today. मुझे नहीं आपका पता, लेकिन मैं अपनी रूह में महसूस कर रहा हूँ कि खुदा की माफौकल फितरत कुव्वत ने मुझ में सकूनत की है, That old मुझे song, तकवीत दी है। there's an old song that comes to me. He's changing me. And in his likeness and image, he's changing me. आमीन। एक पुराना गीत मुझे इस वक्त याद आ रहा है और वो गीत, उसके खूबसूरत बोल ये हैं, हाँ मुझे वो तब्दील कर रहा है, तब्दील कर रहा है, हाँ अपनी शक्ल और शबीह पर वो मुझे तब्दील करता जा रहा है। आमीन। There is a supernatural revelation coming to us today because of the power of the Holy Spirit that is being released upon us now. और खुदा की उस कुव्वत की पाक रूह के वसीला से वो माफौकल फितरत मुकाशवा हम पे इस वक्त जाहिर हो रहा है, जो खुदा के रूह के वसीला से है। He goes on and completes this chapter 15. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. और हम देखते हैं इस बाब का इख्तिताम वो इसी बात से करता है कि जो फानी है वो गैर फानी हो जाएगा और जो करप्ट है वो ठीक हो जाएगा। I love, he goes on to tell us here that so when this corruptible shall have put on incorruption and this mortal shall have put on immortality in verse 54, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. आमीन। और 54 आयत में लिखा है, और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये बढ़ने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुत्फा हुई, ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। आमीन। So we as believers, because we believe in the resurrection of Jesus and the resurrection in our bodies, have a supernatural victory at death. और हम जो ईमानदार हैं, जो कि मसीह के जी उठने पर और हम भी जी उठेंगे इस बात पे यकीन रखते हैं, तो हमारे लिए एक जबरदस्त किस्म की फतह है। I love what he tells us here in verse 55 to the end. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? और मुझे ये आज बड़ी पसंद है 55 में जहाँ पे लिखा है, ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। The sting of death is sin. When we keep on sinning, we're going to die. याद रखिए लिखा है कि मौत का डंक गुनाह है और जब हम गुनाही करते जाएंगे तो फिर हम मर जाएंगे। The strength of sin is the law. The law was a schoolmaster to bring us to Christ. और फिर लिखा है कि गुनाह का जोर शरीयत है। But verse 57 here is the verse of verses. But thanks be unto God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. मैं लेकिन 57 आयत जो है वो इन सब आयतों में सबसे अफजल मैं समझता हूँ वो ये है, अगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। आमीन। And so he ends in verse 58, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, insomuch you know that your labor is not in vain in the Lord. और 58 आयत में वैसे काम करता है, बस है मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम रहो और कायम रहो और खुदा के कलाम में अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावन में बेफायदा नहीं है। We as believers have a supernatural anointing. That word steadfast means powerful ability to go forth in every situation. यहाँ पे साबित कदम के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया वो बड़ा जबरदस्त लफ्ज है कि उसका मतलब है कि हमें
एक ऐसी ताकत या कुव्वत मिल जाती है जिसमें हम कायम रहते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। And my dad would say in the German, that means amazing power that is given to us if we stay focused on the resurrection of what Jesus has done for us. आमीन आमीन। और भाई के वाले जो वो जर्मन जुबान में ये कहते हैं कि वो जर्मन जुबान में इसका मतलब है कि हमें जब हम खुदावंद पर अपनी नजर लगाए रखेंगे तो हमें ऐसी ताकत या कुव्वत मिल जाती है कि हम डटे रहते हैं। आमीन। And I am so thankful here today that we as believers can show to the world a powerful God that is alive today in and through us. आमीन। और हम ईमानदार जब इस दुनिया में हम जिंदगी गुजार रहे हैं तो हम इस दुनिया को अपने किरदार से अपने चाल चलन से ये दिखा सकते हैं कि हमारा कैसा जबरदस्त खुदा है जिसको हम अपनी जिंदगी से दुनिया को दिखा सकते हैं। So now we go to the last chapter of 1 Corinthians here, and Paul is dealing with the collection of money. और अब आखिरी बाब की तरफ आगे बढ़ते हैं और इस बाब में देखते हैं कि पालूस जो है वो रुपया पैसा इकट्ठे करने के ताल्लुक से बात करता है। I asked myself the question, and I asked it to the Lord also, why would Paul want to make sure that he ends the book of 1 Corinthians about talking about giving? मैंने अपने आप से भी ये सवाल किया और फिर खुदावन से भी ये सवाल किया कि क्यों पालूस को इस बात की जरूरत पड़ी कि वो इस खत का इख्तिताम जो है ये रुपए पैसे को इकट्ठा करने के ताल्लुक से वो बात करे। In chapter 16 of 1 Corinthians, verse 1, now concerning the collection of the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do you. और हम देखते हैं 16वें बाब की पहली आयत में लिखा है, अब उस चंदे की बाबत जो मुकस्सों के लिए किया जाता है जैसे मैंने गलातिया की कलीसियाओं को हुक्म दिया वैसे ही तुम भी करो। And in verse 2, he says, upon the first day of the week, let every one of you lay up by him in store as God has prospered him, that there'll be no gatherings when I come. और दूसरी आयत में लिखा है, हफ्ता के ऐसे हर शख्स अपनी आमदनी के मुताबिक कुछ अपने पास रख छोड़े करे ताकि मेरे आने पर चंदा ना करने पड़े। So what I see here in the last chapter here, it's very, very important. Number one, why is Paul addressing money here at the end of 1 Corinthians? और जब इस आखिरी बाब का मुताला करते हैं तो एक बहुत ही जरूरी बात जो यहाँ पे हम देखते हैं और मैं ये बताना चाहूंगा कि क्यों पालूस जो है वो चंदा इकट्ठा करने के बाबत में जो है वहां पे बात करता है। Here is 5 points that I want to share with you here today. 5 अहम नुकात हैं जो मैं आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। Number 1, to care for the believers in need. There was a lot of needy believers at that time. पहली बात जो है कि जरूरतमंद जो ईमानदार हैं उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए, क्योंकि उस वक्त बहुत से ऐसे ईमानदार थे जो कुछ जो जरूरत में थे। We're supposed to care one for another and bear one another's burdens. क्योंकि उनको एक दूसरे की देखभाल करनी थी और एक दूसरे के ख्याल रखना था। And then to demonstrate Christian unity is number 2. और इस दूसरी बात यह है कि जो मसीही ईमानदारों में इत्तेहाद उसका इजहार करना था। Back then, churches were helping each other in that day. और उन दिनों में हम देखते हैं कि जो कलीसियाएं थी वो एक दूसरे की मदद करती थी। And then number 3, to make giving an act of worship. और तीसरी बात यह है कि देना जो है वो एक इबादत का या खुदा को ऑनर करने का एक हिस्सा था। He told us to do it upon the first day of the week.
और यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस उनको ताकीद करता है कि हफ्ते के पहले दिन ऐसा किया जाए। And so our giving acknowledges that everything we have comes from God, and it is an expression of gratitude and trust to God. आमीन। और हमारा देना इस बात को जाहिर करता है कि हम इस बात का इकरार करते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वो खुदा की तरफ से है, और हमारा देना जो है वो खुदा को हमारी शुक्रगुजारी का इजहार भी है। Jesus was raised from the dead on the first day of the week. आमीन। अजीजों, तो मसीह खुदावंद हफ्ता के पहले दिन मुर्दों में से जी उठे। And so we discover that the Jewish people have the Sabbath on Saturday. और हम इस बात को देखते हैं कि जो यहूदी थे उनका सबत जो है वो हफ्ते के दिन होता था। And now it is being changed that we gather together as Christians on Sunday, the first day of the week. और हम मसीही जो हैं हम देखते हैं कि हफ्ते के पहले दिन जो कि एतवार है उस दिन हम इकट्ठे होते हैं। I have a new revelation just by talking to you this morning that every time I give, I am showing the resurrection power of God in my life and in my community. आमीन। अभी अभी खुदावंद की तरफ से ये बुकाशवा मुझ पे जाहिर हुआ है कि जब भी मैं खुदावंद के ताल्लुक से जब मैं देता हूँ तो मैं इस बात का इकरार करता हूँ और इस बात को इज्जत देता हूँ कि हाँ, मैं मसीह के जी उठने की कुदरत के वसीला से ये सब कुछ करता हूँ। Hallelujah! Glory! हालेलुया। खुदावंद के नाम को जलाल मिले। आमीन। And number 4, he is showing to us to encourage plan and appropriational giving. और नंबर 4 जो बात हुई यहाँ पे हमें ये इस बात के लिए वो ताकीद कर रहा है कि किस तरह से हमें मुनज़्ज़म होकर जो है और इस बात को एक रूटीन बनाना है कि हमें खुदावंद के लिए देना है। He says, let each one of you lay something aside as God has prospered you. और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ये बात करता है, हर शख्स अपनी आमदनी के मुआफिक कुछ अपने पास रख छोड़े, And जिस तरह से खुदा ने उसको बरकत दी है। to me, this is very important. मेरे लिए तो ये बात बहुत ही अहम है। Remember, Jesus was watching the people giving in the offering, and there was a widow lady that put in a mite, all that she had. आप देखते हैं कि अंजील मुकद्दस में ये वाकया में नजर आता है कि मसीह खुदावंद हैकल में बैठे थे और वो लोगों को चंदा डालते देखते थे, और वहां पे एक बूढ़ी खातून थी जिसने जो कुछ उसके पास वो 2 दमड़ियां उसने वो चंदे में दे दी। And Jesus told us that that woman gave more than all the rich people did. और खुदा यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि इस बूढ़ी खातून ने जितने भी अमीर लोग यहाँ में सबसे ज्यादा इससे दिया है, Because she gave everything unto the Lord. क्योंकि जो कुछ भी उसके साथ उसने खुदावंद को दे दिया। So we need to teach people that give in proportion to what they get. और इसलिए हमें लोगों को ये सिखाने की जरूरत है कि जो कुछ खुदा ने उनको बरकत दी है उसकी मुनासबत से वो खुदा उनको दें। And so we see here by this instruction to us here through the Apostle Paul that we are responsible, all of us, not by forcing people, but by letting them give willingly. और यहाँ पे पौलुस जो हदायत हमें कर रहा है, इससे हमें ये बात हम पे ये जाहिर होती है या हम सीखते हैं कि जोर जबरदस्ती से, मजबूरी से नहीं, बल्कि ये बात हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम जो है वो खुदावंद के लिए दें। Why? Because God loveth a cheerful giver. और क्यों ऐसा है? क्योंकि वो कहता है कि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। आमीन।
And so Paul ends this chapter here as he deals with others here in the Church of Jesus Christ. और यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो उन दूसरी कलीसियाओं के ताल्लुक से भी बात करता है। He talks in verse 12 here about our brother Apollos. I greatly desire to come to you with the brethren. और 12वीं आयत में देखिए यहाँ पे बात करते हो भाई अपुल्लोस से मैंने बहुत इल्तिमास किए कि तुम्हारे पास भाइयों के साथ जाए, मगर उस वक्त जाने पर वो मुतलक राजी ना हो। And so he could not come at that time. There'll be another time. But then verse 13, he tells us, watch ye, stand fast in the faith, which you like men, and be strong. और हम देखते हैं कि वो बयान कहता है कि वो उस वक्त तो ना आ सका, लेकिन 13वीं आयत में यह कहता है जागते रहो, ईमान में कायम रहो, मर्दानगी करो, मजबूत हो और जो कुछ करते हो मेहनत से करो। And that is a good challenge to bring at your end of your sermon, which Paul is doing here. Watch and stand fast. और यहाँ पे एक बड़ी ही खूबसूरत हम देखते हैं कि इस बाब के इख्तिताम में कि जब हम भी मुनादी करते हैं तो हम लोगों को ये चैलेंज दे सकते हैं कि उन्हें जागते रहना चाहिए, ईमान में कायम रहना चाहिए, मर्दानगी करनी चाहिए, मजबूत होना चाहिए, जो कुछ वो करें मोहब्बत से करें। And I love verse 14. Let all things be done with charity. और हम देखते हैं 14वीं आयत मुझे जो है वो बड़ी पसंद है कि जो कुछ करते हो मोहब्बत से करो। And verse 15 is a powerful verse here also that he leaves with us. और 15वीं आयत बड़ी ही जबरदस्त आयत है और यहाँ पे हमें वो बयान करता है। I beseech you, brethren, you know the house of Stephanas, that it is the first fruits of Achaia. और वो यहाँ पे बयान करते हैं भाइयों तुम स्तिफनास के खानदान को जानते हो कि वो आकिया के पहले फल हैं। And that they have addicted themselves to the ministry of the saints. और मुकद्दसों की खिदमत के लिए मुस्तैद रहते हैं। I am here to declare to you that that's the only addiction, according to God's word, that we should have. और मैं आपको बताना चाहूंगा खुदा के कलाम के मुताबिक ये वाहिद वो लत है जो कि हमारी जिंदगी में होनी चाहिए कि हम मुकद्दसों की खिदमत करें। I love that picture. Lord, let every one of us, every one of our members be addicted to ministering one to another. और मेरी ये दिली लालसा है कि और मैं खुदावन से ये दुआ भी करता हूँ कि खुदावन कलीसिया का हर एक फर्द जो है वो एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना और एक दूसरे की खिदमत करना जो है वो शुरू कर और इस बात की उनको लत लग जाए। And in verse 17, he ends it with, for that which was lacking on your part, they have supplied. और 17वीं आयत लिखा है और मैं सिकस और कहने से खुश हूं क्योंकि जो तुमसे रह गया था उन्होंने पूरा कर दिया। I guarantee you by the authority of God's word that when we addict ourselves to ministering one to another, all our needs will be taken care of. आमीन। मेरे अजीजों में खुदा के कलाम के इख्तियार के बदौलत आपसे ये कहना चाहूंगा जब हमें इस बात की लत लग जाएगी हमारे अंदर ये जज्बा पैदा हो जाएगा कि हाँ हमने एक दूसरे की खिदमत करनी है, एक दूसरे का ख्याल करना है, तो सारी जरूरियात खुदा अपने खजाने से पूरा करेगा। And here at the end we see Paul giving his farewell salutations to them. और यहाँ पे हम देखते हैं कि आखिर में वो अलविदाई कलमात जो है यहाँ पे कहता है। And it's a good salutation that we give to each other in our services. और ये हम देखते हैं कि यही हम सलाम जो है आप एक दूसरे को जब कलीसिया में मिलते हैं हम कहते हैं। Now he tells us in verse 20,
All the brethren greet you. Greet ye one another with a holy kiss. और 20वीं आयत में ये कहता है, सब भाई तुम्हें सलाम कहते हैं, पाक बूसा लेकर आपस में सलाम किया करो. Now, I don't recommend that we do that way today. और मैं ये कहना चाहूँ कि आज भी हमें ऐसा करना चाहिए. Now, I grew up in a No, we shouldn't do that. Yeah, no, we that's shouldn't right. do that. No, we shouldn't do that today. Okay, if I can, I grew up in a Mennonite church that the men would kiss and the women would kiss one another. Tell them जी that. भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई भाइयों को और बहनें बहनों को बोसा दें. But not today. We should not do that. No, that's a big no-no. वो इसके बरक्स नहीं करना. But what Paul is recommending here and showing to us, we should be affectionate and loving and appreciating one another. लेकिन पौलुस यहाँ पे हमें जिस बात को कहना चाहिए कि हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत करनी चाहिए और उन्स रखना चाहिए और एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए. And verse 23, he says, and the grace of the Lord Jesus Christ be with you. और 23वीं आयत में वो कहता है कि यीशु मसीह का फजल तुम पर होता रहे. And verse 24, my love be with you all in Christ Jesus. और 24वीं आयत में कहता है मेरी मोहब्बत मसीह यीशु में तुम सब से रहे. आमीन. So I want you all to know that I am thankful for this teaching in 1 Corinthians. It, at 78 years young, it is changing my life. Can you please repeat that? I want to thank God for this teaching on 1 Corinthians. मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ इस सारी तालीमी सिलसिले का जो कि हमने पहले कुरिन्थियों के खत में जो सीखी है. Sharing this with you is changing my life at 78 years old. आमीन. 78 साल की उम्र में खुदा ने जब मैंने आपके साथ इस कलाम को जो है वो शेयर किया है, मेरी जिंदगी में खुदावंद ने और ज्यादा मुझे अफजाइश और तब्दीली खुदावंद आ रहा है. And my prayer is that you will supernaturally be empowered to do what the Apostle Paul is teaching us to do. और मेरी ये दिली लालसा है और दुआ है कि जो कुछ पौलुस ने हमें इस खत के जरिए सिखाया है उसको हम अपनी जिंदगी में अपनी कलीसियाओं में उस पर अमल करें. In Jesus' name, amen. हालेलुया. यीशु के नाम में आमीन. Amen. God bless you. Wonderful, sir. God bless you, sir. It's really wonderful. I'm sorry for the inconvenience of the connection, but thanks God. Yeah. That goes along with it. Okay, if someone has something to share or you have question, please feel free. जी, अगर किसी ने कोई बात कहनी है या कोई सवाल है तो वो आजादी से सवाल कर सकता है. जी, कोई सवाल कोई करना चाहे तो प्लीज आप कर सकते हैं. It seems like you have answered all their questions. लगता है कि सारे जो सवाल है उनका जवाब आपको आता है. Amen. 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 We would like you to come again and teach us more. Oh, when the Holy Yes. Spirit directs. Yes. I love it. God bless you all, man. Okay, God bless you. Yeah, we'll be in touch. Sure. Okay, fourth year student will stay. We have a meeting with the fourth year students. Thank you so हाँ जी, very much. फोर्थ ईयर के स्टूडेंट रुके हैं क्योंकि आपके साथ अभी हमने
करती है, उससे आप सब लोग जो है